بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو بھی ہمارا کلمہ آئے گا، جیسے مثالیں ہیں جاء، زید، رأیت، زیدن، مررت بزید۔ یہ آپ کچھ مثالوں کو پہلے غور کیجئے، پھر اس پر ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کلمے کی جو آخری حرف ہے، کلمے کا جو آخری حرف ہے، جیسے آپ کے پاس یہ زیدن ہے، اس کا آخری حرف دال ہے، یہاں پر بھی دال ہے اور یہاں پر بھی دال ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کلمے کا آخری حرف جو ہے، اس کی حالت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی۔ جیسے آپ دیکھیں، یہاں پر دو پیش ہیں، یہاں پر دو زبر ہیں، یہاں پر دو زیر ہیں، تو حالت بدل رہی ہے۔ زیدن، زیدن، زیدن۔ جاء زیدن، زید آیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر زیدن فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں پر مرفوع کی نشانی دو پیش کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ رأیت زیدن، یہاں پر زیدن مفعول بہ بن رہا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب ہونے کی صورت یہاں پر دو زبر ہے۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یہاں پر زیدن مجرور ہے، حرف جر آیا ہے، اس لیے یہاں پر دو زیریں آ رہی ہیں، اور یہاں پر مفعول بہ، چونکہ مفعول بہ پر زبر آتا ہے، فی الحال آپ کو سمجھانے کے لیے زبر آتا ہے اور فاعل پر پیش آتا ہے، تو اب یہ حالتیں زیدن کی تبدیل ہو رہی ہیں کسی اور کی وجہ سے، اور وہ اور کیا ہے؟ جاء یہاں پر فعل ہے، تو فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، جو کہ یہاں پر پیش کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہاں پر رأیت، یہ بھی فعل ہے، اس میں تو ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے، اور زیدن مفعول بہ بن رہا ہے، یعنی میں نے کس کو دیکھا، تو یہاں پر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، جو یہاں پر دو زبر کی صورت میں ظاہر ہے۔ اور یہاں پہ حرف جر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، حرف جر اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے۔ تو تینوں چیزوں کی وجہ سے اس کا اعراب یہاں آپ سمجھ لیں کہ زبر زیر پیش، فی الحال ہے تو نہیں ایسا، لیکن فی الحال جو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اعراب میں اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن یہ بھی اعراب میں آتا ہے۔ تو زبر زیر پیش جو تبدیل ہو رہی ہے، اس کا اعراب جو تبدیل ہو رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جو عامل ہیں، یعنی جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، وہ مختلف ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں یہ فاعل بن رہا ہے، یہاں مفعول بن رہا ہے، اور یہاں مجرور بن رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بعد میں تفصیل سے آئیں گی، یہاں پر آپ کو مختصر تھوڑا سا ہم اشارہ دیتے ہیں۔ اب جو لفظ ایسا ہو جس کا آخر پیچھے عامل کی وجہ سے بدلتا رہے مطلب کبھی پیش ہو، کبھی زبر ہو، کبھی زیر ہو، جس کا آخر بدلتا رہے، اس کو ہم معرب کہتے ہیں، معرب۔ اور دوسری مثال یہاں پر ہے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت
बिहादा, बिहादा। देखिए यहाँ पर जैद के बदले में हम हाजा इस्तेमाल करें। जा जैदुन, जैद आए, यहाँ पर मैं कहूँगा जा हाजा, ये आया, यानी ये जो जैद ही है। और राइतु जैदन, मैंने जैद को देखा, और फिर मैं कहूँगा राइतु हादा, मैंने इसको देखा, यानी ये जो जैद है, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, हाजा इस्तेमाल। मररतु बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, अब मैं कहूँगा मररतु बिहादा, मैं इसके पास से गुजरा, यानी ये भी वही जैद है। लेकिन यहाँ पर जो हम हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ जा आ का फ़ाइल होने की वजह से इस पर पेश आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। राइतु हादा की वजह से दो ज़बर आने चाहिए थे, नहीं आ रहे हैं। मररतु बी हादा, बा की वजह से ज़ेर आने चाहिए, नहीं आ रहे। तीनों सूरतों में हादा 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 बदल नहीं रहा है। जिसका एराब पीछे वाले की वजह से ना बदलता हो, इसको मबनी कहते हैं, मबनी। यानी जिसका आखिर किसी चीज़ की वजह से बदले ना, यकसां रहे, एक जैसा रहे, इसको मबनी कहते हैं। और जिसका आखिर आमिल की वजह से बदलता रहे, उसको मुअरब कहते हैं। अब ये मबनी की भी आगे तफसील आएगी, मुअरब की भी तफसील आएगी। मुख्तसर आपको मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ कि आखिरी हरफ की तब्दीली के एतबार से कलमे की दो किस्में, एक मुअरब है और एक मबनी है। मुअरब वो है जिसका आखिर बदलता रहता है, और मबनी वो है जिसका आखिर बदलता नहीं है। मुअरब वो है जिसका आखिर आमिल के एतबार से बदलता रहता है। आमिल क्या चीज़ है? आमिल वो है जिसकी वजह से मुअरब का आखिर बदले। यहाँ पर ज़ैदुन पर पेश आ रहा है जा आ की वजह से, जा आ फ़ैल है, ये तफसील आप आगे इंशाल्लाह पूरी समझ लेंगे। जा आ फ़ैल है, फ़ाइल को रफ़ा देता है, इसकी वजह से इस पर पेश आया है। ज़ैदन पर दो ज़बर राइतु की वजह से आया है, क्योंकि फ़ैल और फ़ाइल वहाँ मौजूद है, तो मफ़ूल बी पर ज़बर देता है, और बा हरफ जर इसको ज़ेर देता है। तो यहाँ पर आमिल बा हरफ जर है, यहाँ पर राइतु है, जहाँ पर जा है। तो जा आ, राइतु और बा ये आमिल हैं, और ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन ये मामूल है, यानी जिस पर आमिल अमल कर रहा है। और इसी को अगर ये तब्दील हो रहा है तो इसको मुअरब कहते हैं, इसको मुअरब कहते हैं। और एक चीज़ है एराब, जो तब्दीली मुअरब के आखिर में हो रही है उसको एराब कहते हैं। यहाँ पर दो पेश है, यहाँ पर दो ज़बर है, यहाँ पर दो ज़ेर है, तो ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश यहाँ पर एराब कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चंद चीज़ें आई हैं। एक तो है मुअरब, मुअरब कहते हैं जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे। जैसे मुअरब ज़ैदुन है, क्योंकि ज़ैदुन, दन, दिन तीन सूरतों में बदला। दूसरी बात है आमिल, आमिल मतलब काम करने वाला। यहाँ काम करने से मुराद क्या है कि ये जो पेश आ रहा है इसको पेश देने वाला कौन है? जा है, तो काम करने वाला जा है, आमिल इसमें जा है। यहाँ राइतु आमिल है, ज़ैदन को ज़बर देने के लिए राइतु आ रहा है, और यहाँ ज़ेर देने के लिए बा आ रहा है। तो हम कहेंगे तीनों मिसालों में जा आ और राइतु और बा हरफ जर ये आमिल है। बा हरफ जर, राइतु और जा आ ये आमिल है, यानी ये अमल करता है और इसको ज़बर ज़ेर पेश देता है। और जिसको ये देता है वो दो किस्म का हो सकता है, या अगर इसका हाल आखिरी हरकत बदलती है तो मुअरब, और नहीं बदलती तो वो मबनी है, जो मैंने मिसाल से समझा दिया। और एक होता है यहाँ पर महल्ले एराब, महल्ले एराब यानी एराब की जगह कौन सी है, एराब कहाँ पर तब्दील होता है। तो देखिए यहाँ पर एराब तब्दील हो रहा है दाल पर, दाल पर, दाल पर। तो ये दाल जो इसका ज़ैदुन का आखिरी हर्फ है, ये महल्ले एराब है, एराब की जगह है। महल कहते हैं जगह को, एराब की जगह है। तो यहाँ पर महल्ले एराब क्या है? वो दाल है, यानी दाल ही पर एराब इसका तब्दील होता है। तो आपके पास कितनी चीज़ें आ गई? एक तो मुअरब वो कलिमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। आमिल वो है जो इसको बदलता है,
यानी पेश देता है, ज़बर देता है और ज़ेर देता है। और तीसरी एराब, एराब वो दो पेश दो ज़बर दो ज़ेरें जो इस पर आ रही हैं, इसको एराब कहते हैं। और ये एराब कहाँ पर आया है, इसकी जगह क्या है, महल एराब, तो वो दाल के ऊपर और नीचे आ रहा है, इसलिए दाल महल एराब है। जैसे तीनों मिसालों में जा ज़ैदुन में जा आमिल है, ज़ैदुन मुअरब है, दाल महल एराब है और दो पेश एराब है। रआइतु ज़ैदन में रआइतु आमिल है, ज़ैदन मुअरब है और दाल महल एराब है और दो ज़बर इसका एराब है। इसी तरह मररतु बि ज़ैदिन में बा आमिल है, ज़ैदिन मुअरब है और दाल महल एराब है और दो ज़ेर इसका एराब है। एराब ज़बर ज़ेर पेश के अलावा भी बहुत सारी सूरतों में आता है, उनके साथ अभी हमें बात करना नहीं है। अब जिस पर ये तब्दील हो रहा है वो मुअरब है, और जैसे मैंने आपको जा हादा राइतु हादा मररतु बि हादा की मिसाल बता दी, तो हाजा में तब्दील नहीं हो रहा है तो उसको मबनी कहा जाता है, उसको मबनी कहा जाता है। तो जिसमें एराब तब्दील नहीं होगा वो मबनी है, और जिसमें एराब तब्दील होगा वो मुअरब है। अब इसकी तीन किस्में हैं कि इसमें मुअरब के तीन एराब होते हैं। ये जो इसमें मुअरब है बदलने वाला, इसके तीन एराब हैं। एक एराब है रफ़ा, दूसरा है नसब और तीसरा है जर। रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा नसब जर की आगे चलकर आपको मुख्तलिफ सूरतें सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ समझाने के लिए रफ़ा कहते हैं पेश को, नसब कहते हैं ज़बर को और जर कहते हैं ज़ेर को। ये आर्जी तौर पे समझा रहा हूँ। खाली इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ये एराब कौन सा है तो हम कहेंगे रफ़ा है, ये एराब कौन सा हम कहेंगे नसब है, और ये एराब कौन सा हम कहेंगे जर है। अब जिस चीज़ पर रफ़ा होगा हम कहेंगे ये मरफू है, ये मरफू है। जिस चीज़ पर नसब होगा हम कहेंगे ये मंसूब है, और जिस चीज़ पर जर होगा हम कहेंगे ये मजरूर है। जैसे यहाँ पर ज़ैदुन पर रफ़ा है तो ज़ैदुन मरफू है, ज़ैदन पर नसब है तो ज़ैदन क्या है, यहाँ पर मंसूब है, और यहाँ ज़ैद के नीचे दो ज़ेरें हैं तो यहाँ ज़ैद मजरूर है। किसके एतबार से, एराब के एतबार से। जो ही आपको कहेगा ये मरफू है तो आप कहेंगे कि इस पर पेश है, मंसूब है तो ज़बर है, मजरूर है तो ज़ेर है। और पेश को रफ़ा, ज़बर को नसब और ज़ेर को जर कहते हैं, चाहे एक ज़ेर हो चाहे दो ज़ेरें हों। और ख़ाली इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी तफसील हैं, वो आगे इंशाअल्लाह दूसरी किताब में आपके सामने आएंगी। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि जा आमिल है, ज़ैदुन इसका मामूल है, और इसी को आप मुअरब भी कह सकते हैं क्योंकि बदल रहा है। और यहाँ पर दाल महल एराब है, और ये जो दाल के ऊपर पेश है ये एराब है, और आमिल इसका ये है, और ये पेश है तो पेश को रफ़ा कहते हैं, तो इस पर रफ़ा है तो इसलिए ज़ैदुन मरफू है। रआइतु आमिल है, ज़ैदन मामूल भी है, और इसी को मुअरब भी कहेंगे आप। और इस ये दाल महल एराब है, दो ज़बर इसका एराब है, और दो ज़बर को आप नसब कहेंगे, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये मंसूब है, क्योंकि ज़ैदन पर दो ज़बर हैं इसलिए मंसूब है। मररतु बि ज़ैदिन में बा हरफ जर ये आमिल है, क्योंकि मररतु का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़ैदिन पे जो ज़ेर दे रहा है ये बा हरफ जर दे रहा है, पीछे वाला नहीं दे रहा है, तो बा हरफ जर ये आमिल है। ज़ैदिन इसका मामूल है और ये मुअरब है क्योंकि बदल रहा है, और दाल महल एराब है और दो ज़ेरें इसका एराब है, और ये जर है तो इसलिए ये मजरूर है। तो अब आपके जहन में याद रहा कि जिसके ऊपर पेश ज़बर ज़ेर तब्दील हो रहे हैं तो इसको मुअरब कहेंगे, और जो तब्दील नहीं होगा उसको मबनी कहेंगे। इसकी इंशाअल्लाह बाकी भी बहुत सारी तफसील आप हज़रात के सामने आइंदा असबाक में आएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।